السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون۔ وقال تبارك وتعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ قال عز وجل شانه في مقام ثالث هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وَإِلَيْكَ النُّشُورُ۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا اکیلا تنہا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء مشائخ، اولیاء کرام کہ جن کی محنتوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک گزشتہ خطبات تمسک بالکتاب والسنہ کا تیسرا حصہ، تیسرا پارٹ
آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، اسی کی اتباع ہے، شریعت کے مطابق ہی انفرادی اور اجتماعی زندگی، شریعت کے مطابق انسان کا بچپن، اس کی جوانی اور اس کا بڑھاپا، زندگی کے تمام شعبہ جات قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، خواہشات اور شبہات کی پیروی نہیں کرنی، خصوصاً ان لوگوں کی خواہشات جو علم نہیں رکھتے، قرآن و سنت سے بہرہوار نہیں ہے، قرآن و سنت سے آگاہ اور آشنا نہیں ہے۔ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب اللہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام قرآن، مبارک، یہ بابرکت ہے، اسی کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ تعالیٰ نے زندگی بسر کرنے کے لیے دو چیزیں تحفے میں دی ہے، ایک کتاب، دوسری حکمت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو انسان کی زندگی کے لیے بہت بڑا رہنما ہے۔ اس کے ساتھ اگلے مقام پہ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان جس کا تقاضا پوری کائنات سے ہے، ایمان اسلام جس کا مطالبہ تمام دنیا کائنات کے جن و انس سے ہے، وہی ایمان سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینے والے، ایمان کی تبلیغ ترویج کرنے والے رسول، اس کے ذمے بھی ایمان ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی جاتی ہے اس پر انبیاء کرام اور اہل علم بذات خود ایمان لاتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمان شریعت پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ، اور اسی طرح فرشتوں کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ۔ جو ایمان لایا وہ صاحب ہدایت ہے، جو ایمان نہ لایا وہ گمراہ ترین انسان ہے۔ اگلے مقام پہ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ایمان صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، ایمان صرف اقرار کی حد تک نہیں ہے، ایمان صرف لکھنے کی حد تک نہیں ہے، دستور قرآن و سنت صرف لکھنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ
عملی طور پر اسے اختیار کرنا انفرادی حیثیت سے، اجتماعی حیثیت سے، یہ اصل شریعت کا مطلوب ہے، شریعت کا اصل مقصود ہے۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور اسی طرح میرا جینا اور میرا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ حدیث میں ہے اللہم بیکا اصبحنا و بیکا امسینا و بیکا نحیا و بیکا نموت۔ صبح ہر روز بندہ مسنون اذکار میں یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میری زندگی کی ہر صبح تیرے دین کے ساتھ، تیرے حکم کے ساتھ، تیری اطاعت کے ساتھ، تیری فرما برداری کے ساتھ، تقوی کی صورت میں، سمع اور اطاعت کی شکل میں ہر صبح ہے، اور ہر شام ایمان اسلام کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس اجمال کے بعد آگے تفصیل وابی کا ناحیہ وابی کا نمود، کہ زندگی کا ہر سانس، زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر خیال وہ تیرے حکم کے تابع ہے، تیری مدد کے ساتھ قرآن و سنت کے تابع ہے۔ گویا کہ اس دعا میں اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر اقرار ہے کہ ہر صبح اور ہر شام ہر سانس قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو نماز بعد جماعت کروائی۔ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقبل علینا، پھر اللہ کے رسول صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، ایسا بلیغ، فصیح، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا بات، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا بات جو مقتضی حال کے مطابق، مخاطبین کے لیول کے مطابق اور مخاطبین کی ضرورت کے مطابق جو واضح ہو وہ واضح بلیغ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے زارفت منہ العیون وواجلت منہ القلوب، آنکھیں بہ پڑی، دل ڈہل گئے۔ اور اس کے بعد ایک کہنے والے قائل نے کہا کہ اللہ کے رسول یوں محسوس ہوتا ہے کاننا ہذہ موعظہ، یہ آخری وعدہ ہے، تو آپ ہمیں کس چیز کی نصیحت، کس چیز کا وعدہ دیتے لیتے ہیں؟ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، تقوی، سمع، اطاعت، پوری زندگی میں اس چیز کی نصیحت وصیت کرتا ہوں۔ اگرچہ سمع اطاعت میں ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کے تحت زندگی بسر کرو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے تمسک بالکتاب والسنہ، وہ کیا ہے، دین کیا ہے، یہ بھی بتلا دیا گزشتہ جمعے میں۔ دین لینا کیسے ہے، اس کے بھی 3 طریقے بتلائے، کہ ایک طریقہ دین کو لینے کا مغربی ہے، دوسرا طریقہ مخصوص فقہی اقوال کی روشنی میں لینا، اور تیسرا طریقہ قرآن و سنت کو بعینی ہی اسی کے طریقے اور اسی کے منہج فکر کے مطابق جو قرآن و سنت دیتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ 3 طریقے مستعمل، 3 طریقے رائج ہیں۔ اسی سے آگے سبق بڑھاتے ہوئے کہ رسول کائنات کے دین کو
तस्लीम करने का और इसी तरह मुसलमान मोमन मुखलिस मुत्तकी होने का दावा करने वाला आदमी उससे कौन सी जमाली तौर पे चीजें तकादा करती हैं। पहला नुक्ता तमस्सुक बिल किताबी व सुन्ना के तहत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कुरान और सुन्नत की रोशनी में वही जली और वही खफी की सूरत में पूरे कुरान पर और तमाम अहदीस सहीहा पर ईमान लाना बगैर किसी तरद्दुद के और बगैर किसी तशकीक और बगैर किसी तहय्युर के, ये तमाम मुसलमानों से लाजमी चीजें हैं। 4 चीजें जो इजमाली तौर पे बयान कर रहा हूं। पहली चीज क्या है कि रसूल कायनात की तालीमात कुरान और सुन्नत की सूरत में तमाम चीजों पर ईमान बगैर तरद्दुद के लाना यह हर मुसलमान पर वाजिब है, फर्ज है। जो आदमी भी कहता है मैं मुसलमान हूं, वो कुरान के हर लफ्ज पर इजमाली तौर पे ईमान लाएगा, जिसे आप ईमान मुजमल भी और ईमान मुफस्सल भी कहते हैं। हमारे यहां ईमान मुजमल से मुराद वो 6 चीजों का सरसरी तौर पे इकरार करना, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रुसुल, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल मलाइका और ईमान बिल कदर, ईमान बिल यौमिल आखिरा। इन तमाम चीजों पर ईमान लाना ये इजमाली तौर पे ईमान कहा जाता है। हालांकि ये भी ईमान इजमाली है, जट का बिल्कुल सादा सिंपल तरीका, लेकिन यह भी ईमान इजमाल में आता है। कोई आदमी शरीयत का कोई मसला बताए और वो कुरान सुन्नत में हो और फिर उस पर इतना ईमान लाना कि मैं इसको दिल से, जबान से, अपने रवैयों से मानता हूं, अगरचे मुझे तफसील का नहीं पता, मानता हूं कि सियासत शरिया है, मानता हूं कि निजाम इस्लाम का है, मानता हूं कि दस्तूर कुरान और सुन्नत है, मानता हूं कि पर्दा है, मानता हूं कि हया है इस्लाम में, मानता हूं कि इस्लाम में सिर्फ हलाल खाना है, हराम छोड़ना है, अकीदा सही होना चाहिए, गलत कोई नहीं होना चाहिए। यह भी ईमान मुजमल है, यह मुफस्सल इस तरह नहीं है। आगे उसकी दीगर चीजें हैं कि जिनको तस्लीम करना है, और इसके साथ साथ ईमान मुफस्सल तो वही है जो अहले इल्म, उलमा, तलबा, असातिदा, मसाजिद, मदारिस एक एक लफ्ज के ऊपर डेरा डाल के, एक एक लफ्ज की वजाहत करके, एक एक लफ्ज की तफसील करके लोगों को बतलाते और समझाते और अमल करवाते हैं। यह है ईमान मुफस्सल। हमारे यहां ईमान मुजमल से मुराद सिर्फ 6 चीजों को एक दफा जबान से गुजार देना और कहना कि यह ईमान है, यह ईमान मुजमल नहीं है। आपके सामने कुरान का लफ्ज है, पर्दा करो, आपने कहना पर्दा है, उसकी सूरत क्या है, कफियत क्या है, सर का, हाथ का, पांव का, वो आगे लहदा तफसील है। आपको पता हो कि दस्तूर निजाम कुरान सुन्नत का है, मानो कि कुरान सुन्नत का है, आगे तफसील उसकी क्या है वो अलग बात है। मानो कि मुआशरा हया पे खड़ा होना चाहिए, मानो कि तालीम मार्फत इलाही पे खड़ी होनी चाहिए, मोहब्बत इलाही पे खड़ी होनी चाहिए, वो आगे उसकी तफसील अलग है। मईशत सूद से पाक होनी चाहिए, ये इकरार करना, और हमारे यहां तो इकरार भी नहीं है और ईमान मुजमल पूरा है। दूसरी चीज जो एक मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है, दीन इस्लाम की जरूरी तालीमात को सीखना और उन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचाना। हम हदीस पढ़ते हैं और स्कूलों में
कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में बाकायदा दीवारों पे लिखी हुई देखते हैं, तालाबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। वो इल्म कितना फर्ज है जिसको सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजम है। इसका तयन अवाम नहीं करेगी, उलमा करेंगे। अवाम इसका तयन नहीं करेगी कि वो कौन सा इल्म कितना है। मसलन एक आदमी बिजनेसमैन है, उसके लिए बिजनेस के तमाम इजमाली तफसीली उसूल सीखना फर्ज है। उतने आलिम आदमी के लिए तफसील सीखना फर्ज नहीं है जितनी के उस आदमी के लिए जो बिजनेस करता है। मसलन कोई आदमी कहे कि मैं बिजनेस करता हूं, तो बिजनेस करने वाले को 1, 2, 3, 4, 5 की शक्ल में उसूल सारे लिखे हुए उस तरह डिस्प्ले हो, दफ्तर में लगे हो कि भाई इसके मुताबिक तजारत, इसके मुताबिक ऑफिस, इसके मुताबिक बिजनेस, इसके मुताबिक कारोबार है। ये अब कर बिजनेस रहा है, बिजनेस को उसको उसूल नहीं आते। एक आदमी मुसाफिर है, मुसाफिर आदमी वो मुस्तकिल सफर में रहता है। जैसा कि आजकल सफर की जॉब भी शुरू है मुख्तलिफ गाड़ियों की शक्ल में। अब उसके लिए सफर की तमाम तालीमात सीखना फर्ज है और तफसील से सीखना फर्ज है। यह नहीं है कि वो घर से निकले और दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और उसके बाद सुब्हानल्लाज़ी सख्खरना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन पढ़ के उसके बाद सारी जिंदगी, सारा दिन, 24 घंटे सफर करता रहे। उसे पता ही ना हो कि दीन के लम्बे लम्बे में सफर के अहकामात क्या है। एक मुअल्लिम है, उसे उस्ताद के तमाम फर्जियों और साफ का पता होना चाहिए। इसी तरह एक हमारे यहां ओहदेदार, ओहदे में वजीर आजम है, उसको उसके एतबार से, उसको उसके दीगर के एतबार से तफसील का वक्त नहीं है। हर आदमी मुलाजम को मुलाजमत के शरई उसूल पता हो। सरकारी कोई भी अफीसर है उसको सरकार के और इसी तरह रसूल कायनात के पूरे उसूलों का इल्म हो। इसका मतलब है तालाबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। और फिर इसके बाद बाकी में फिर वो बाकियों के साथ है कि उसके अकायद क्या होने चाहिए, उसकी इबादत क्या होनी चाहिए, उसके मामलात, उसकी अखलाकियात। ये तो वही रूट है जो तमाम के यहां इस्लाम, तमाम के लिए इस्लाम ने लगाया है। एक आदमी वो किसी भी जगह कारोबार करता है, जॉब करता है, या इसके अलावा बाप है, मां है, उसे बतौरे बाप, उसे बतौरे मां, जो बाप के उसूल है, मां के उसूल है, उसके लिए बासियत मां की तालीम क्या होती है वो सीखना हर मां के लिए फर्ज है, हर बाप के लिए। वो सारे बाप का कोई लफ्ज खाली लफ्ज है, बाप एक पूरा इदारा है, मां एक पूरी यूनिवर्सिटी है। उसे पता होना चाहिए कि मां की तरबियत का पहला दिन कब से शुरू होता है। अब मां हमारे यहां तरबियत समिति है, जब वो मां बच्चा लफ्ज बोलना शुरू हो तब नहीं, उसका हस्बैंड के इंतखाब से वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन चलो वो भी काम छोड़े, प्रेगनेंसी के पहले दिन से सफर शुरू हो जाता है। हमारे यहां जिस वक्त देखा जाता है कि बच्चे की प्रेगनेंसी वाला मामला शुरू है, उस वक्त मां की तालीम फर्जी क्या है उसे इल्म होनी चाहिए। वो कुरान सुने ताकि बच्चे को जैसे गदा दे रही है इसी तरह रूहानी गदा भी पहुंचे। जिस तरह वो उसको फीड करवा रही है इसी तरह कुरान और सुन्नत की गदा भी पहुंचे। उसे पता हो कि मैंने बच्चे को पेट में रख के गुस्सा ज्यादा नहीं करना, बच्चा गुस्सीला पैदा होगा। बेहयाई के काम नहीं करने, बच्चे को बेहयाई विरासत पेट से मिलेगी। बच्चे को तालीम क्या देनी है ये उसको पता होनी चाहिए। इसका मतलब है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। हदीसें कुरान और सुन्नत की लिखते हैं, तशरीह अवाम करती है, तशरीह झटके लोग करते हैं, मुआशरा झटका पैदा होता है और फिर रोते हैं कि ये दहशतगर्दी क्यों है, ये फलां क्यों है। बड़े जिम्मेदारी से काम करने पड़ते हैं। आज सिर्फ सियासत में देख लें, ये हमारे उलमा से भी उनके अंदर भी कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है। सिर्फ छोटी सी मिसाल, इमरान खान मसलन फर्ज करें, उसने 20 साल करप्शन का लफ्ज दिया है, अब जाके 20 साल बाद
लोगों की जबानों पे भी करप्शन का लफ्ज आया, दिमागों पे नहीं आया। और जिसका उसने नामजद नाम किया था, लोगों के सामने सिर्फ वही नाम आता और वही बोलते हैं, हालांकि बात ऐसी नहीं है। इसी तरह नून लीग ने जिस चीज का नारा लगाया, 20-25 साल लगाया, अब जाके वोट 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 लोग करना शुरू हुए हैं। ये मजाज बनाने पड़ते हैं, फिक्र बनानी पड़ती है, तालीम तरबियत देनी पड़ती, चाहे सियासी पार्टी हो चाहे मजहबी पार्टी हो। दीनदारों ने अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल उस तरीके से नहीं किया, लोगों की जबानों में अल्लाह रसूल नहीं रहा। तीसरी चीज, शरीयत को जिंदगी के तमाम शोबाजात में तरजीह, यह लफ्ज अहम है। शरीयत को जिंदगी के तमाम शोबाजात में तरजीही बुनियादों पे लेना। शरीयत ली जाती है, कुरान और सुन्नत लिया जाता है, इस्लाम लिया जाता है, लेकिन तरजीही बुनियादें नहीं होती। तरजीही बुनियादों पे लेना, उसी के मुताबिक जिंदगी को गुजारना। फिर उसके बाद चौथी चीज, रसूल कायनात की तालीम, जिस पे तुम ईमान लाए हो, जिसको तुमने सीखा है, जिसको तुमने तरजीही बुनियादों पे अपने अमल में लाए हो। चौथी चीज, ये दिफा सिर्फ मिंबर महराब की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे कुरान और सुन्नत की दिफा में हर मुसलमान को खड़ा होना, यह हर मुसलमान का, चाहे छोटा मुस्लिम हो चाहे बड़ा मुस्लिम हो, दिफा करना उसके ऊपर फर्ज और वाजिब है। ये चार चीजें जो मेरे फाहम में आई, वो इसके मुताबिक आप देखें तो पूरे का पूरा दीन आपके अंदर उतर जाता है, चाहे जमाल में आए चाहे तफसीर में आए। और हो क्या रहा, तमस्सुक बिल किताबी व सुन्ना, कुरान और सुन्नत को लेना, और लेना कैसे है वो अलग बात। कुरान और सुन्नत को छोड़ने के दो रवैये हैं। एक का लेने वाले रवैये मैंने आपको पिछले जुमे बतला दिए थे। कुरान और सुन्नत को छोड़ने के बुनियादी पूरी दुनिया में जो रवैये पाए जाते हैं, वो दो किस्म के रवैये हैं। पहला रवैया, कुरान और सुन्नत को छोड़ना इनकार करके, इस पे पूरा कुफर, आलम कुफर खड़ा है, पूरी दुनिया का कुफर एक लफ्ज पे खड़ा है, कुरान और सुन्नत इनकार। बस उसमें ईसाई ले लो, यहूदी ले लो, हिंदू ले लो, सिख ले लो, बुद्ध मत ले लो, तमाम अदियान इनकार पे खड़े हैं। अब आ जाओ मुसलमानों की तरफ। मुसलमानों में फिर आगे दो किस्म के रवैयों में के बाद लोग कुरान और सुन्नत को छोड़ते हैं अकली, मंतकी, तरीकी, फलसफी शुबहात की बुनियाद पे। और माफ करना, इसमें बर्रे सगीर पाको हिंद के लोग नहीं है। बर्रे सगीर पाको हिंद का कोई बंदा मेरे सामने बिठाएं और उससे बात करें कि वाकईतन ये इस मसले को किसी दलील और शुबे की बुनियाद पर नहीं ले रहा। नहीं, हमारे यहां कुरान और सुन्नत को छोड़ा जाता है ख्वाहिशात की वजह से, मफादात की वजह से, जाती अनाद और तासुब की वजह से। उसको कोई ऐसा शुबा लायक नहीं होता जो कुरान और सुन्नत पे गौर कर करके, तदब्बुर कर करके, तफक्कुर कर करके, बाकायदा ताल्लुम कर करके, ताक्कुल कर करके थक जाए। उसे पता ना हो कि असल कुरान और सुन्नत है या असल अक्ल है, असल अल्लाह का निजाम है या असल इंसान का निजाम है। उसे समझना है कि असल औरत को घर रहना है या औरत को बाहर रहना है। उसे पता ना हो कि तालीम का असल गोल क्या है, सियासत का असल गोल क्या है, मईशत मुआशरत का असल गोल क्या है। यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है कि अल्लाह से अच्छी भली कोई दुनिया कायनात की मखलूक तालीम नहीं दे सकती। यही वजह है इंसान के निजाम 25 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल से आगे ज्यादा नहीं निकलते, क्योंकि वो उन बुनियादों पे नहीं होता जो बुनियादें इल्मी होती हैं। अल्लाह का इल्म अलीम बिदाति सुदूर है, अल्लाह अल्लामुल गुयूब है। अल्लाह का इल्म भी है, अल्लाह की कुव्वत भी है, और इल्म कुल्ली है। हमारा इल्म कुल्ली नहीं है, जुज़वी है। अल्लाह का इल्म मुस्तकिल बिज़ात है, हमारा इल्म आरजी है। आरजी इल्म से आरजी निजाम, आरजी इल्म से आरजी दस्तूर, आरजी इल्म से आरजी कानून, आरजी इल्म से आरजी लॉजिक हो सकती है। मुस्तकिल इल्म अल्लाह की जात, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी। यही वजह है कि अल्लाह का दिया हुआ इल्म, अल्लाह का दिया हुआ दस्तूर और निजाम
पूरी जिंदगी के लिए एक होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम से शुरू हुआ है अलैहिस्सलाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, अभी तक ला इलाहा इल्लल्लाह बदला नहीं है। और तमाम अंबिया ला इलाहा इल्लल्लाह के बयान के लिए ही आए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का बयान कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में, कभी खलीलुल्लाह की शक्ल में, ईसा रूहुल्लाह की शक्ल में, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की शक्ल में, उसने तमाम अंबिया ने यही समझाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर हमारे लोग हदीस बयान करते हैं जिस वक्त हौद लगेगा और हौद पे तमाम उम्मत आएगी और वहां क्या कहा जाता है ना, फरातुकुम अलल हौद, मैं तुम्हारा हौद पर इस्तकबाल करूंगा और इस्तकबाल करने के साथ उन लोगों को मैं दूर भगा दूंगा जिन लोगों ने क्या किया, लफ्ज़ सोकन सोकन। और हमारे मजहबी लोग इस हदीस को बहुत महदूद सतह पे फिट करते हैं और महदूद सतह पे बयान करते हैं। मतलब जो आदमी बिदती है उसको कहा जाएगा कि तू हौद से दूर हो जा, मशरूब से दूर हो जा। बिदती क्या होता है? बिदती क्या होता है? मजहबी नारे की बुनियाद पे, मजहबी नारे की बुनियाद पे दीन को या कम करने वाला या मजहबी नारे की बुनियाद पे दीन में इजाफा करने वाला। जो आदमी सियासी नारे की बुनियाद पे, सियासी नारे की बुनियाद पे दीन को कम करता है या दीन को ज्यादा करता है, उसको क्या नाम देंगे? यानी मजहबी नारे के नाम पे दीन में कुछ इजाफे करता है और दीन में कुछ कमियां करता है, मजहब की बेस पर, दीनदार होने की बेस पर, मसलक की बेस पर। तो जो आदमी सियासत के नाम पर, जो अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पर, हुकूक इंसानियत के नाम पर जो आदमी इस तरह कमी पेशी करे, उसको क्या नाम देंगे? उसके लिए भी सोकन सोकन है, सोकन सोकन, दूर हो जा, दूर हो जा। तूने मेरे निजाम को नाक़िस समझा, अपने निजाम को कामिल समझा। तूने मेरे निजाम को आर्जी समझा, अपने निजाम को मुस्तकिल समझा। मेरे निजाम में तूने लफ्ज़ दिए ये कदीम है, मेरे निजाम को तूने कहा ये फरसूदा है, मेरे निजाम के मुतल्लिक़ तूने कहा ये महदूद है। ये तमाम वो नारे, कहा कि महदूद शरीयत लामहदूद मसाइल का हल नहीं कर सकती, फरसूदा तालीम जदीद निजाम को हल नहीं कर सकती, कदीम तालीमात जदीद मुआशरों के, मेडिकल के, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री के निजाम को हल नहीं कर सकते। इनको क्या नाम देंगे? यह भी सुहकन सुकन है। हां, कुरान और सुन्नत के तहत तमाम तालीमात ठीक है, जिसमें बुनियाद यह हो कि मार्फत इलाही और मोहब्बत इलाही। और इसके साथ साथ आगे जो चीजें समझने वाली है, पीछे एक सिर्फ इजमाली तौर पे नाम देता हूं। पहले जो अकीदे के अंदर मसाइल बयान करते थे और तहरीफ इधर उधर की बातें करते थे, हमारे उलमा उनको तो जानते हैं किस नाम से, उलमा भी बैठे हैं। 6 नाम थे अकीदे की मबाइस में। एक, जो अल्लाह रसूल की बातों में बातें मिक्स करे, अल्लाह रसूल की बातों में अपनी तशरीहात करे, अल्लाह रसूल की बातों की अपनी शक्ल में वजाहत करे, उसका पहला नाम हम जो देते थे वो क्या? तमसील। अल्लाह रसूल की, अल्लाह को किसी के साथ तमसील, मिसल बनाना। दूसरी है तशबीह, तीसरी है तातील, नफी कर देना। चौथी थी तकयीफ, कोई खास कफियत बयान करना। फिर इसी तरह तफवीद। अब ये सारी शक्लें मौजूदा जमाने में मौजूद हैं, सिर्फ उनको नाम देकर उसके मुताबिक बयान करने की और समझाने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तमस्सुक बिल किताबी व सुन्ना का जहां नारा मारने की तौफीक देता है, वहां इस नारे को समझकर आगे इबलाग करने की भी तौफीक अता फरमाए। हादा माइंदी वली अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।